आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Once again, welcome back to your favorite program related to sports, that is खेल की बात रेडियो टशन के साथ 22nd of March, and we are going to witness the first match of the mega event Indian Premier League, or sometime you can say Indian, or I can say पैशन लीग, इंडियन, तमाम तरीके के नाम इसके आप बना सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत सारे नाम इसके कई बार लिए जाते हैं। बहरहाल, it will be Chennai versus Bengaluru will be playing their first match of the IPL, and it will be a first match of the tournament as well. Both the teams looking very solid, but Chennai will be in upper hand. The way they have chosen their team, it will be a bit difficult for both the side to pick their players. We have already discussed all the teams, their lineups, their planning. What can they do? What will be the thinking of the think tank? But again, everything will depend on the match. A big news, a breaking big news is coming from a Chennai team that MS Dhoni has quit the captaincy, and it will be Rituraj Gaikwad who will be doing this honor after MS Dhoni. The legacy which he has left behind, I'll be not surprised if it becomes a bit difficult for Rituraj Gaikwad, because Dhoni was not a captain. He was an institution. The way he played, the way he adjusted, the way he led the side, the way he won the trophies for the side, including Indian cricket team. 3 ICC trophies is under the belt of Dhoni, and so many times, 4 time, I think, 5 what? Dhoni has a IPL trophy as well. So an institution has just decided to take some rest, give the seat to any younger player who is coming to be a part of that side, and Rituraj Gaikwad will be doing the captaincy for complete season, and Dhoni will be playing as a wicketkeeper and a player. Yes, his suggestion will be taken, considered, because nobody can deny whatever he is going to suggest during the course of the match. Again, with me, nobody else, Mr. Ramakrishnan from Lucknow on call. Hello and welcome back on the show. जी हाँ, पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को ढेर सारी मुबारकबाद कि आज आईपीएल का 17वें सीजन का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल का साज सजने जा रहा है, आईपीएल का मेला सजने जा रहा है। 17वें एडिशन का, यानी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन आज से औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन हो जाएगा, और उद्घाटन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आने की संभावना है। Yes, the matches will be viewed or will be streamed on Star Sports, on TV and Geo Cinema, as well as and some other sports channel that might be Sports 18. So viewer can simply go and watch these matches. If you want to listen the commentary of for the matches, so you can simply visit Iqbal Sports as well. They'll be giving all the match live on their YouTube channels, and there are some other mediums through which you can take the frenzy of the cricket or of the IPL. Now, see how the team will be in the first match. What do you think? How important the toss is going to be? First of all, the toss is a crucial part. तो क्या लगता है कितना important होने वाला है? जी हाँ, सबसे पहले मुझे लगता है पहले हमें बात करनी होगी पिच की। चलिए चेन्नई की पहले पिच है। टॉस की बात कर लेते हैं। हाँ, चेन्नई की पिच है तो चलिए क्योंकि चलिए पहले टॉस की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टॉस बहुत अहम होने वाला है। क्यों? लोग कहते हैं बाद में बैटिंग करना आसान है, लेकिन मुझे लगता है चेन्नई का विकेट, चिपॉक का विकेट जो है वो बाद में स्लो डाउन होता रहता है, और पहले यदि आप बैटिंग करते हैं, अच्छा खासा स्कोर लगा देते हैं, तो फिर बाद में मुश्किलें पेश आएंगी, दुश्वारियां होंगी। वहीं यदि बाद में आपको चेज करना है तो बड़ी बुद्धिमानी से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि
12th मैन यहाँ खुद चेन्नई के स्पेक्टेटर है ना। चेन्नई को चेन्नई में वो सपोर्ट मिलता है कि वो आपका 12th मैन है, तो मुझे लगता है उसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और टॉस बिल्कुल निसंदेह यहाँ का क्रूशल होगा। और फिर भी मुझे लगता है पिच बेशक धीमा हो जाए, लेकिन जो टॉस जीतेगा मुझे लगता है वो पहले गेंदबाजी ही करेगा यार, है ना। And the match will be starting at 8 p.m. So this is the news coming from the ground. तो 8 बजे मैच होगा, हम सोचे 7:30 बजे होगा, लेकिन 8 बजे स्टार्ट हो जाए क्योंकि पहला दिन है। मैं वही आपसे अभी ऑफलाइन डिस्कस ये करा था। मैंने आपको बताया था 8 बजे। हाँ हाँ, हम सोचे 7:30 बजे ना हो, पहला दिन है तो मुश्किल लगता है कि, है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं पिच पे। चेन्नई में 2 तरह की पिच है, ये आपको पता होना चाहिए। चेन्नई में 2 पिचें हैं, एक लेफ्ट एक राइट। समथिंग एक जो पिच है, एक काली मिट्टी की शायद ये पिच है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। तो काली मिट्टी की ये पिच है। पिच 2 है इनके पास। एक वो पिच है जिसमें बहुत सारी स्पिन होती है, बहुत स्पिन होती है उस पिच में। क्या मैं बताऊं, मतलब मन में एक ऐसी फीलिंग आती है, बहुत स्पिन होती है यार उसमें तो। और एक पिच है लेफ्ट वाली में बहुत स्पिन होती है। दूसरी पिच जो है वहां पे एक यूं कहें बल्लेबाजी के लिए माकूल विकेट है। और ये मालूम है ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि अपने अपोजिशन को देखते हैं, अपोजिशन की जो कमजोरी होती है ना उस पे वार करते हैं। जैसे ये देखते हैं कि अपोजिशन जो है उनका है वो जो है स्पिन को अच्छा नहीं खेलता है, वहां स्पिन टर्नर बना देते हैं, स्पिन विकेट बना देते हैं। यानी बनाना क्या है, स्पिन वाली विकेट पे वो खिलाते हैं। और जहां पे उनको लगता है कि चेन्नई कहीं फंस सकता है, वहां पे ये पाटा विकेट बनाते हैं, है ना। यानी खूब पिटाई होती है वहां भाई, गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है। तो ये तो साहब पिच का हाल है। ये आप एमए चिदम्बरम पे मैच होना है, राइट? जी हाँ, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चिपॉक। जी, तो अंपायर चिपॉक जो होंगे में इस मैच के सब डिसाइड वगैरह हो गए हैं, पता है आपको? तो बस सब जी, मैच का इंतजार करते रहो भैया 8 बजे। तो चिपॉक पे मैच है। और ये जो मैंने, अच्छा एक चीज बताइए, जो मैंने बताई ये बात, ये आपको पता थी पहले कि नहीं पता थी? कौन सी? यहाँ लेफ्ट और राइट 2 पिचें हैं, दोनों की तासीर क्या है। हाँ, नहीं, मैंने दोनों पिचों को शायद उतने गौर से देखा नहीं, बट सुना जरूर है कि 2 पिचेस हाँ, हैं अगल बगल। दोनों पिचों की ये दोनों पिचों की ये तासीर है। और मैं बताऊं, मैं ये बातें आप सबको तब बता रहा हूं, आप सबका मतलब आपके माध्यम से और रेडियो टशन के माध्यम से, जो तमाम हमारे देखने वाले तम वीडियो को देखेंगे, तमाम सुनने वाले वीडियो को सुनेंगे, तो उनको ये वहां तक ये बात जानी चाहिए कि मतलब जो बात हम बता रहे हैं वो आपको हम यूं ही नहीं बता रहे। हमने उस पे सब कुछ एनालाइज किया, हमने उसको समझा, और हमने तमाम वीडियोस देखे, और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वहां क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। तब हम ये आकलन कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो अभी तक जो मैं चेन्नई को खेलते देख पाया हूँ सारे सीजन्स में, उनके लिए कुछ मुश्किल लगता नहीं। अगर वो बाद में बैटिंग भी करते हैं तो धोनी जैसे प्लेयर उनके साथ हैं, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क लेके बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। आपने टॉस पे बात कर ली, पिच पे बात कर ली, क्या लगता है आपको किस टीम के पास रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है रिसोर्सेज की बात करें तो चेन्नई के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज कैसे करना है ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। आपके पास 3 ऐसे ऐसी फौज है, 3 ऐसे 3 बल्लेबाजी के स्तंभों की
3 बल्लेबाजी के स्तंभों की वो फौज है और तो 3 बल्लेबाजों के स्तंभों की हमारे पास वो फौज है। उनमें रचिन रविंद्रा, डेरेन मिचेल और मोइन अली, है ना। तीनों एक एक्स फैक्टर बल्लेबाज है। तो और तीनों की खासियत, तीनों गेंदबाजी भी करते हैं। ये मजे की बात है। तो मुझे लगता है कि मैच अच्छा होगा। और क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है चेन्नई के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अब बेंगलोर को सीमित रिसोर्सेज में उनसे ज्यादा काम लेने की आवश्यकता है। अच्छा, लगे हाथ क्लियर का तो जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं मैच के प्रसारण को लेके, तो उसमें एक बड़ा क्लियर लिखा हुआ है टीवी गाइड में, स्ट्रीमिंग पे लिखा हुआ है जियो सिनेमा और टीवी पे लिखा हुआ है स्टार स्पोर्ट्स। इसका अगर हम और आप मतलब निकालना चाहें, क्या निकल रहा है? यही कि टीवी पे केवल स्टार स्पोर्ट्स से मैच आएगा और जी हाँ, ऑनलाइन केवल जियो सिनेमा पे। जी हाँ, जो लिखा है उसके मतलब से तो यही चीज है, क्लियर है ये तो या फिर तो मोबाइल वाले जो हैं वो हॉटस्टार का पैक अगर लिए हैं तो इनके लिए नुकसान है। जियो सिनेमा का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हैं फिलहाल, और दोनों फिलहाल कंपनियां एक ही हैं, ये बात आप समझ लें। डील बहुत पहले फाइनल हो गई थी, अब केवल प्रसारण के अधिकारों की बात है, वो भी आपको आज नजर आ जाएगी। खैर, थोड़ा सा अच्छा, मैच की तरफ मुड़ते हैं। एक चीज, हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ कि चेन्नई के बारे में सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन हमें ये विचार करना है, हमें इस पे बात करनी, आरसीबी क्या बेहतर कर सकता है। तो कोहली आते हैं, एक नई एनर्जी आ जाती है। जो विमेन आईपीएल अभी संपन्न हुआ, उनकी कप्तान, विजयी कप्तान स्मृति मंधाना ने विराट कोहली से वीडियो चैट किया और मनोबल बढ़ाया कि ये हो सकता है ये साल हमारा हो, ये साल आरसीबी का हो, ये साल आरसीबी की डबल ट्रॉफी का हो, कपल का हो, है ना। बहुत कुछ कहा उन्होंने। तो क्या मानते हैं, आरसीबी कर सकता है? अभी जैसे ना उनके वुमेन्स टीम ने किया, तो उनका थोड़ा मोराल हाई है और उनको लग रहा है कि अगर वुमेन्स ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड दैट टू बी होना चाहिए। इसलिए देश में या स्टेट्स में कहीं भी बॉयज एंड गर्ल्स के बीच कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या, अगर एक वर्ग के किसी खिलाड़ी ने बेहतर किया तो अगला वर्ग जो है सोचता है कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं करते। ये टेम्पटेशन जो है ना, ये विराट कोहली के मन में होगी। और अपनी कप्तानी में तो वो कुछ हासिल कर नहीं पाए, कप जैसी चीजें एटलीस्ट। बाकी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट अच्छा खेला उन्होंने। अच्छा, सचिन का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन एक टीज तो रह गई है अभी भी कि उन्होंने कप नहीं उठाया एटलीस्ट अपनी कप्तानी में। तो शायद ये साल, जैसे हर साल अंदाजा लगता है, इस साल कप करके कुछ उनका एक वो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो हर साल वो कहते हैं कि इस बार कप हमारा है, इसका हिंदी अनुवाद यही होता है। लेकिन आज तक उनका बन नहीं पाया। 16 सीजन ऑलरेडी गॉन बाय, 17 इज अबाउट टू बिगिन। और इत्तेफाक देखिए, पहला मैच बेंगलुरु के साथ में ही है। तो यहाँ से मोमेंटम बड़ा जरूरी है। अगर मोमेंटम बेंगलोर को नहीं मिला है, 2-3 मैच लगा, अगर हार गए लगातार, बड़ा मुश्किल होने वाला है। एंड वी हैव सीन teams who lost 4-5 matches came back to win the finals. मुंबई इंडियंस के साथ आपने देखा, ये 4-5-6-7 मैच हारने के बाद भी वो वापस आए और टूर्नामेंट जीत के गए हैं। तो वो सब टीमें नहीं कर सकती, मुश्किल होता है। तो बेंगलोर के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, चैलेंजेस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद अपने लोगों को ज्यादा दे रखी है। हर बार उम्मीद उनके दर्शक करते हैं, फैंस करते हैं, बट वही है, उनको मिलता नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी क्राउड का आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उनका, क्योंकि वो आते हैं और हमेशा आते हैं। आपकी टीम अच्छा करे तब भी आते हैं, बुरा करे तब भी आते हैं। तो ये जो 12th मैन है ना, ये जरूरी है। क्रिकेट में अगर दर्शक या किसी भी खेल में नहीं रहेंगे, मैं समझता हूँ क्रिकेट की या किसी भी खेल का कोई भला नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा सा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें सोचनी होती है। तो प्लेयर्स वो भी कई बार प्रेशर ले लेते हैं कि यार इतने बंदे या लोग आते हैं देखने, अगर हम अच्छा नहीं करते हैं तो उनके
सेंटिमेंट्स, इमोशंस जुड़े होते हैं हमसे, फिर वो कई बार सपोर्ट कम नजर आता है उनको। और चेन्नई वाला जो ग्राउंड है वहां पे 50,000 की क्षमता है। आपको लगता नहीं कि 50,000 से ऊपर दर्शक आ जाएंगे, क्योंकि धोनी और कोहली दोनों आमने सामने हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि चेन्नई में केवल चेन्नई के सपोर्टर होंगे, देयर विल बी बेंगलुरु सपोर्टर एज वेल। कोहली के भी सपोर्टर्स कम नहीं है, फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। हाँ, धोनी एक आइडियल प्लेयर है, वो एक अलग मामला है। वो उनका चेन्नई कनेक्शन है, तमाम चीजें हैं। तो अच्छा है, अच्छा मैच होगा और क्राउड में मजा आएगा, क्योंकि दोनों टीमों के बराबर सपोर्टर्स होंगे। चेन्नई के पास थोड़ा एज जरूर होगा शायद, क्योंकि उनके घर में मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स की मुझे लगता है आप उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर से मैं आपको बताऊं तो ये न्यूज में भी छपा था कि चेन्नई के गढ़ में, धोनी के गढ़ में कोहली कोहली की जय हो रही है, कोहली कोहली का जय घोष हो रहा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप ये ना माने कि आरसीबी को सिरे से खारिज कर दिया गया है। वही। आरसीबी की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इससे आप नकार नहीं सकते, क्योंकि दोनों साउथ की टीमें हैं। खैर, एब्सोल्युटली। अब हम आते हैं टीम कंपोजिशन पे। देखिए जी, आरसीबी ने प्लेयर तो खरीद लिए, धनराशि भी उन पे बरसा दी, उनको यूज कैसे करना है ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ बिल्कुल फॉरेनर कैमरन प्लेयर्स की। ग्रीन, कैमरन कैमरन ग्रीन की। ग्रीन। सीधी सी बात है, हम्म। आपने ट्रेडिंग में उनको ले लिया और और कितने पैसों में लिया? अराउंड करीब 18 या 19 18-19 करोड़ में। करोड़ में, है ना। तो आपने ले लिया और इतना इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बताइए, यदि ग्रीन को आप खिलाते हैं 5 पे, जो कई बार काम करते थे, मुंबई के लिए भी किया है उन्होंने बाद में, हम्म। वो फलदायी रहेगा, या सीधे ग्रीन से यार ओपन ही करा लो यार, देखी जाएगी साला। हाफ, सॉरी गलत वर्ड निकला। तो फाफ डिप्लेसी सोच रहे होंगे ग्रीन ओपन कर ले, कोहली 3 पे वैसे भी खेलते हैं, हाँ, क्या हर फर्क जगह पड़। हर जगह खेलते हैं, हम्म। पाटीदार को 4 पे खिला ले, मैक्सवेल को 5 पे खिला ले, हम्म। और कार्तिक को 6 पे खिला लें, बिल्कुल। और जो है फिर वहां से आप महिपाल लोमरोर को शायद या किसी और को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज कर लो। तो हम्म। ओपनिंग करानी आप चाहिए, मुझे लगता है ओपनिंग जी ही आप करानी चाहिए। बताइए क्या मानते हैं। ओपनिंग ही करानी चाहिए, उसको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ भैया, मार के आओ, अगर मार सकते हो तो, वरना कोई बात नहीं। तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैक्सवेल 5 नंबर पे खेल लेंगे, पहले 4 पे खेलते थे, पूरे आईपीएल में उन्होंने 4 पे बल्लेबाजी की। तो क्या ये आरसीबी के दृष्टिकोण से। ये आरसीबी अभी देखो कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कप्तान कौन है? फैफ डुप्लेसी। जी, तो फैफ डुप्लेसी की मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन उनके होते, जो धोनी के डिसीजन होते हैं ना, वैसे डिसीजन नहीं होते हैं। वो बड़े जिसको कहते हैं ना, प्रिंसिपल वाले क्रिकेटर हैं, सैद्धांतिक क्रिकेटर हैं, कि हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो वो ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर, आपने कभी देखा नहीं होगा उनको कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करते हुए। मतलब ऐसे प्लेयर जो एकदम सीक्वेंस में यकीन रखते हैं, जो जैसे खेलता है, जो जहाँ पे कंफर्टेबल है वहीं पे उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो आई डोंट थिंक मैक्सवेल से कुछ छेड़छाड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पे खेल रहे हैं वहीं पे अच्छा खेल रहे हैं वो। तो क्या आप क्या मानेंगे, ग्रीन को फिर 5 पे खिला लेंगे। मे बी दिस आई थिंक ओपनिंग करानी चाहिए, बट इट लुक्स बिट डिफिकल्ट। तो वो या तो 5 पे जाएंगे, या तो फिर उनकी जगह नहीं बनेगी। एक तो चीज होगी ना। और यदि इतने बड़े प्लेयर को आप खिला रहे हैं, जगह तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, अल्जारी जोसफ, लॉकी फर्गुसन में से कोई एक खेलेगा मे ये बी, मैंने क्योंकि ग्रीन, डुप्लेसी, मैक्सी, हाँ, ये ये 3 तीन तो पक्का खेलेंगे। खेलेंगे मोरलेस। हो जी, सकता है एक आध मैच में कोई इधर उधर हो, कभी ग्रीन को रिप्लेस करके कोई और खेल ले। तो जोसेफ और फार्ग्यूसन में मैंने बताया था आपको कि मैं अगर कैप्टन हूं तो आई विल गो विथ फर्गूसन। मैंने बोला था शायद पिछले पिछले जी, शो में। जी, क्योंकि आपको एक ऐसा बॉलर जो थोड़ा डराए धमकाए, थोड़ा सा
चढ़ के बॉलिंग करे। तो फर्गुसन हैज दैट एबिलिटी, वी हैव सीन व्हेन ही वाज प्लेइंग विद केकेआर ना, एक बार केकेआर से भी तो खेलते थे एक जमाने में। जी हाँ खेले हैं। देखा है इनको हमने। और भारत के विरुद्ध वो आप कैसे भूल सकते हैं, न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल था ना इंडिया का, जी। वो तो आपको याद होगा। हम्म। तो मुझे लगता है उनके साथ जाना चाहिए। हाँ, आपकी जो बात थी दैट वाज आल्सो राइट, कि जोसेफ बैटिंग भी कर लेते हैं, राइट? आप ये कह रहे थे। बैटिंग दोनों कर लेते हैं, फर्गुसन भी कर नहीं, लेते हैं। जोसेफ आप ये कह रहे थे, जोसेफ थोड़ी बेटर बैटिंग करते हैं इन कंपेयर टू अलजारी फर्गुसन, जोसेफ, हाँ। राइट? दिस इज या व्हाट योर वर्ड्स। हाँ, दैट माइट बी अ चांस कि वो जोसेफ का जाए, बट आई बिलीव दे विल गो विद फर्गुसन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, ये रीस टॉपली की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते आखिर? भाई आप सीधे एक फंडा अपना सकते हैं कि पहले ही पावर प्ले में इतनी ऐसी गेंदबाजी कर दो कि टीम जो 2-3 है वो विकेट गिर जाए। बैक फुट पे आ जाए। अगर वहां कहीं जो है दो ओपनर और दो मिडिल के बैट्समैन, चार बैट्समैन, 3 या 4 चले गए, तो क्योंकि सिराज विकेट टेकर है ही है आपके पास, और अगर दूसरी तरफ से कोई ऐसा धारदार हथियार आपको मिल गया, तो आप तहस नहस कर सकते हैं उस टीम को। लेकिन मुझे लगता है वो जाएंगे, टॉपले के साथ जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं जाएंगे। तो ये वो, डिफेंसिव सोच हो सकती है। खैर, हाँ, दिस माइट अब बी डिफेंसिव काइंड ऑफ अब थिंग। हम चेन्नई की बात करते हैं। तो बेंगलोर की ऑलमोस्ट यही रहेगी जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई के पास भी एक हाँ या ना की स्थिति है। अजिंक्य रहाणे से वो ओपन कराएं या ना कराएं, या टॉप 4 में ही वो जो है वो दबाव डाल दें ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ के, आप दबाव डाल दें रचिन रविंद्रा, डेरिल मिचेल और मोइन अली का, क्योंकि नीचे आपको महेश तीक्षणा की ही आवश्यकता पड़ेगी फिलहाल, क्योंकि पथिराना आपके पास है नहीं, मुस्तफिजुर है नहीं, तो या एक को ड्रॉप करके सेंटनर के साथ जाएंगे, तो कोई मतलब सेंटनर का होने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। क्या मानते हैं, रहाणे से ओपन करा ले या टॉप 4 ये रख ले हम? नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप किसको कह रहे हैं? मैं मान रहा हूँ रचिन को ओपन करा लें, और गायकवाड़ के साथ। हाँ 3 पे और 3 पे हम जो है मोइन अली को मोइन खिला अली को लें, खिला दें, और और 4 पे हम मिचेल मिचेल को को। खिला लें। हाँ, ये एक अच्छी मूव हो सकती है, बट डोंट यू थिंक कि रहाणे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, करते आए हैं पिछले कई सीजन से धोनी के लिए। तो थोड़ा सा मे भी थोड़ा एक सोच ना, क्या ठीक है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। और रहाणे मोरलेस खराब नहीं करते, ठीक है, एक आध बार उनके साथ चीजें अच्छी नहीं गई, बट वो खराब प्लेयर तो नहीं है। पावर प्ले में भी अच्छा खेलते हैं, वो चौके वोके अच्छे मार लेते हैं, साइड से, इधर से, उधर से, कहीं से भी। बट आई स्टिल बिलीव वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं, वो थोड़ी ज्यादा अटैकिंग अग्रेसिव वाली सोच हो सकती है। अब डिपेंड करेगा रुचिराज गायकवाड़ सोचते कैसे हैं। धोनी यहाँ पे होते तो हम कुछ और बात कर रहे होते आज, लेकिन क्योंकि धोनी कप्तान नहीं है, तो धोनी बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देंगे अब, ठीक है? धोनी जब पूछे तब बताएंगे वो, जहां तक मेरी अपनी सोच है। आपने देखा होगा उनको इंडिया टीम में खेलते हुए, जब वो कप्तान नहीं रहे, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे प्लेयर्स को। वो विकेट कीपिंग के माध्यम से जो करते थे वो करते थे, पीछे से कुछ चेयर अप करना, ये वो, बट ज्यादा इंटरफेरेंस उनका होता नहीं था। आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऋतुराज गायकवाड़ थिंकिंग कि वो सोच क्या रहे हैं। तो ये तीनों जो अच्छे बैटर है, शुरू शुरू में इनको खिला दिया जाए, बीच में जैसे धोनी जैसे बैटर आपके पास है ही है, तो ठीक सोच हो सकती है। तो आप किसके साथ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, मतलब इस समय क्या लग रहा है, रहाणे के साथ जाया जाएगा? आई थिंक दिल गो विद रहाणे। रहाणे। हम्म। तो 3 में से कौन बाहर होगा? एक तो जाएगा। डार्ल मिचेल, सचिन रविंद्र, मोइन अली, राइट? इन हम्म। तीनों में से कोई एक। इट्स गोइंग टू बी स्पिन ट्रैक है which आई थिंक मोइन अली माइट बी इन टेम्पटेशन, माइट बी, आई एम नॉट रियली श्योर, बट अश्योरिटी कोई ले नहीं सकता। तो आई जस्ट थिंक मोइन अली मे गो आउट ऑफ द टीम। बाहर जाएंगे। यस। तो डेरिल मिचेल और सचिन रविंद्र खेलेंगे। सचिन रविंद्रा खेलेंगे आपके हिसाब से? राइट। अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ पे। तो फिर फॉरनर का मामला नहीं फंस जाएगा? फिर क्या आप सेंटनर को भी खिला लेंगे?
अगर स्पिन ट्रैक होगा तो सेंटनर ज्यादा हैंडी हो सकते हैं। क्योंकि तीक्ष्णा खेलेंगे हाँ तो क्या आप सेंटनर के साथ भी चले जाएंगे? बिल्कुल, अगर स्पिनिंग ट्रैक होगा, इट डिपेंड्स ऑन टॉस, उसके बाद एक टीम डिसाइड होती है। और दो टीमें बना के लोग रखते हैं आजकल कप्तान, कि अगर टॉस हारेंगे तो कौन सी होगी, टॉस जीतेंगे तो कौन सी होगी, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट सेंटनर में प्ले, बिकॉज चेन्नई में सेंटनर ने कई बार अच्छी बॉलिंग की है, आपको याद होना चाहिए कुछ इंस्टेंसेस। हम्म। तो सेंटनर माइट बी देयर सेकंड चॉइस, बट हो सकता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ओपनिंग पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। शिवम दुबे इंजरी से रिकवर होके आ रहे हैं, तो शायद ये मैच नहीं खेलेंगे। तो डेब्यू हो सकता है एक युवा उभरते हुए सितारे समीर रिजवी का। बहुत नाम तो सुना है। कैसी समीर रिजवी के बारे में आपकी सोच है? बहुत नाम सुना है, टैलेंट बहुत है ऐसा सुना है मैंने। और जिस सिचुएशन से निकल के बाहर आए हैं, वो कई बार बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो सिचुएशन से निकल के बाहर आते हैं, पहले कुछ कर रहे होते हैं फिर कुछ कर रहे होते हैं। रिंकू सिंह का आप देख लो, पहले वो क्या करते थे, आज उनका मकाम क्या है। आई बिलीव समीर रिजवी हैज अ वेरी गुड चांस टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। जितना बेहतर वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बार बार मौके जिंदगी देती नहीं है आपको, और अगर दे दे दोनों हाथों से उसको लपक लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन दिस टाइप ऑफ थियरी। समीर रिजवी माइट बी वेरी टेम्पटेटिव की, मतलब यार पहला मैच है, अगर वो खेलते हैं तो, जिसके चांसेस आपने बताया है, तो अगर वो खेलते हैं तो पहला मैच किसी किसी के लिए कई बार अच्छा हो जाता, कई बार बुरा भी हो जाता। तो आई जस्ट बिलीव कि बीच का रहे अच्छा अगर ना कर पाए तो बहुत बुरा भी ना करे, ताकि जो कॉन्फिडेंस और मैचेस के लिए वो बढ़ा रहे। अदरवाइज एक एक लड़का गांव से निकल के आता है और वो पहले मैच में अपने खेलता है और कुछ खराब परफॉर्मेंस हो जाती है, तो फिर वो जो आगे के मैचेस होते हैं ना, उसका प्रेशर उस पर रहता है, क्योंकि अभी वो इतने परिपक्व एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आते जितना मैंने सुना देखा है। तो अगर एक प्लेयर कोई मेच्योर्ड ना हो और उसको पहले मैच में कुछ सेटबैक मिल जाए, तो पूरा सीजन माइट बी वेस्टेड, पूरा सीजन खराब हो सकता है। आई बिलीव द समीर विल हैव टू टेक बिट बिट यू नो रिस्क फ्री अप्रोच, तो शायद वो अच्छे क्रिकेट खेल लें, और हो सकता है पहले मैच के बाद फिर आगे उनको और मौके मिले। और मैं समझता हूँ अगर समीर रिजवी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 2 4 6 मैच उनको खिलाने चाहिए। तो क्योंकि स्लॉट एक है, शिवम हम्म। दुबे, यस, समीर समीर रिजवी, रिजवी। दो लोग हैं। शिवम दुबे को और आपने बहुत खिला लिया, देखा आपने मुझे उनको। लगता है शिवम दुबे ने जो काम कर दिया है, तो हम्म। उनकी तरफ चेन्नई देख ही रहा है। लेकिन बिल्कुल। शायद इस समय वो रिकवर होके आ रहे हैं। अभी चेन्नई से एक आध दो दिन हुए हैं ज्वाइन हुए, उनको चेन्नई कैंप को ज्वाइन किया है। तो ये मौका है समीर रिजवी को टेस्ट कर लेने का। और यदि समीर रिजवी खेल जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि अगले मैच में आपको दुबे को खिलाना हो, तो आप दुबे से ओपन करा ले रहाणे की जगह। ये भी हो सकता है। आप आगे जाके यदि देखें, क्योंकि दुबे का स्टाइल वही स्टाइल है। और अच्छा, अंत में और शार्दुल ठाकुर पे बहुत छोटा सा कमेंट आपका लेना चाहूंगा कि बहुत सी फ्रेंचाइजी में वो ऊपर बैटिंग करते थे, जहां पहले थे केकेआर में, बहुत ऊपर, कई बार ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला। यहाँ आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ आप 5 पे रिजवी या दुबे खेलेंगे ही खेलेंगे, 6 पे जडेजा खेलेंगे, 7 पे धोनी खेलेंगे, और तब कहीं आपका नंबर 8 पे आएगा। वो भी कंपटीशन होगा आपका दीपक चाहर से। तो क्या राइट। मानते हैं शार्दुल ठाकुर के बारे में? नहीं, अभी उन्होंने जिस तरह से इंडियन टीम के साथ भी बैटिंग की थी बीच में, कुछ अच्छे अच्छे हाथ दिखाए थे। मैं समझता हूँ अगर दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में कंपटीशन की बात है, तो शायद देखो, सीनियरिटी हिसाब से दीपक चहर को मौका दे दिया जाए। बट आई बिलीव अगर शार्दुल ठाकुर ने अच्छा किया है तो उनको रिवॉर्ड एटलीस्ट मिलना चाहिए। जो वो खैर, करते आए हैं उनको रिवॉर्ड मिलना मुझे चाहिए। लगता है हमने इस पे चेन्नई पे काफी बात कर ली। अब मैं जाते जाते कुछ जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन पे जरूर बात करूंगा। वो ये है कि हिस्ट्री कहती है 2008 के बाद से कभी भी हम्म। चेन्नई को आरसीबी ने नहीं हराया है। यदि इस आंकड़े को झुठलाना है, पलटवार करना है, तो आपको एटलीस्ट ऐसा पंच मारना होगा
कि आप सरपंच बन जाएं और सब रिकॉर्डों को झुठलाते हुए आपको मैच बदलने वाला परफॉर्मेंस चाहिए। राइट। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है? हाँ, उसपे मैं आऊंगा आऊंगा अभी रुकिए। तो आप बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर है आरसीबी के दृष्टिकोण से जो इस काम को कर सकता है? ऊपर के 2-3 प्लेयर, एक प्लेयर से तो होने से रहा। वो जैसे आपने अगर महाभारत देखा हो तो जब अर्जुन युधिष्ठिर उसको दुर्योधन को ढूंढने जा रहा था विराट युद्ध में, तो गंगा पुत्र और तमाम लोगों ने कहा था रोको इसको। तो कृपाचार्य ने बोला कि जी ये हमारे एक रोकने से रुकेगा नहीं। तो एक से काम होने वाला नहीं है। आ, आपको 2 या 3 प्लेयर ऐसे चाहिए who can do something for you. Virat Kohli, no doubt. Fab Duplessis will have to play his part as well, above from the captaincy. उसके अलावा उन्हें अच्छा खेलना होगा। तो और हमने 2-3 प्लेयर पे डिस्कस किया था। क्या है बेंगलोर का अभी? कैमरन ग्रीन है, कैमरन फाफ ग्रीन है, फैफ डुप्लेसी, डुप्लेसी मैक्सी है, है, मैक्सवेल। यस, तो कोहली, मैक्सवेल, फैफ डुप्लेसी, these 3 players and केजीएफ कहते भी हैं। yes, यदि right, आरसीबी को जीतना है तो केजीएफ का right. ये जो समीकरण है उनको चलना बहुत जरूरी है। केजीएफ को चलना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली और ये तीनों एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं अगर जीतता है इन केस तो बैंगलोर। अच्छा, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ आप सभी के सामने, वो कि जो ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई है उसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जो एशियाई खेलों में जो क्रिकेट को शामिल किया गया था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। यदि ओवरऑल रिकॉर्ड की मैं बात करूं, ऋतुराज गायकवाड़ के 16 मैचों में कप्तानी की है, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं। हम्म। क्या कहना चाहे? हाँ, अच्छा रिकॉर्ड है। 10 मैच जीत लिए 16 में से कोई बुरा नहीं है। 50% से ऊपर रिकॉर्ड है थोड़ा सा। तो देखिए वो अलग गेम था और ये अलग गेम होने वाला है। वहां आपके पास जो भी टीमें थी बहुत अच्छी टीमें नहीं थी। आपने देखे होंगे मैचेस में। यहाँ टीमें बेहतर है, उनके पास ज्यादा बेहतर रणनीतियां हैं। तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए डिसीजन मेकिंग में। बाकी धोनी का साथ है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो अच्छा कर पाए अगर वो उनके साथ इनपुट्स वगैरह लेते हैं। अच्छा, फ्लेमिंग ने यही का तो कहा है, आज कल बोला था कि इस बार हम 2 साल जैसे 2 साल पहले स्थिति थी उससे बेहतर प्रिपेयर थे कि कप्तान बदल दिया जाए। बीच में 2 साल पहले बात हुई थी कप्तान बदलने की ना, जब जडेजा को दिया गया था, आपको याद होगा। फिर बीच में जी धोनी आए थे, राइट? जी जी जी। तो अब इस बार ये लोग बेटर प्रिपेयर हैं, ये कहा है फ्लेमिंग ने। इसका मतलब ये पहले से ही सोच थी, बिल्कुल। लेकिन उसको बताया गया। अच्छा, हुआ क्या, 3:38 पे जब कप्तानों की फोटोशूट हुआ तो उसमें क्या हुआ, कप्तान आए तो ये कहा गया कि 9 कप्तान आ गए हैं और धवन की जगह जीतेश शर्मा आए थे, वाइस कैप्टन है जो पंजाब के। हम्म। तो सबने आंकड़ा लगाया 9 कैप्टन, यहाँ तो धोनी है नहीं, क्या मतलब है? फिर 3:47 पे एक कमेंट आया चेन्नई का कि अब हमारे ऑफिशियली ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान नियुक्त कर दिए गए हैं। तब ये राइट। चीजें क्लियर हो पाई है ना। हम्म। अच्छा, टॉस कौन जीतेगा? इट्स गोइंग टू बी बेंगलुरु। चलिए, मैं सीएसके के साथ हूँ। मैच कौन जीतेगा? सीएसके। आई ऑल्सो थिंक दैट सीएसके माइट विन दिस गेम। बट अगर मैं मैं चाहता क्या हूँ ये बताऊं। इट्स बेंगलोर टू टू विन द गेम, टू मेक आउट ऑफ इट, बिकॉज उन्होंने कभी हराया नहीं। तो थोड़ा तो होना चाहिए कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो। ठीक है। और तो बहुत सारी चीजें हैं अभी। अगर हम और थोड़ी सी बात सब करें, नहीं। हम्म। समय हमारे पास बिल्कुल है नहीं क्योंकि हमने बहुत लंबा हाँ, शो कर दिया है। सब अब जो है मैच टू मैच चर्चाएं पर चर्चाएं होंगी और तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। तो फिलहाल आज बात हो चुकी है सारी चीजों पे और अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले सेगमेंट में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और 8 बजे
कहीं न जाइएगा, रात 8 बजे मैच जरूर देखिएगा जियो सिनेमा स्टार स्पोर्ट्स पर। नमस्कार।